Hey guys, good morning to all of you. क्या हाल चाल कैसे हो? एकदम बढ़िया. Too good. So guys, let's continue our journey. This is my lecture 3. Lecture 1, we completed with something that is known as Introduction to Accounting Standards. Lecture 2, we completed something which is AS1, Disclosure of Accounting Policy. तो guys, आज एक थोड़ा practical numerical standard with lot of questions on this. So guys, the standard is known as AS2, Valuation of Inventory. So in this standard, we are going to deal on every aspect relating to inventory. Chapter design, सबसे पहले definition पढ़ लेंगे. Measurement, जो सबसे main part है. Measurement के दो components है, one is cost and second one is NRV. And finally, we'll study about inventory valuation techniques. Perfect है. Too good. Guys, जैसे मैंने last time कहा था, I hope आप सब लोग पेन और नोटपैड और कैलसी से रेडी हो, बिकॉज आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इज बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री. व्हाट इज इन्वेंट्री? गाइस, इन्वेंट्री रिप्रेजेंट्स एसेट्स दैट आर three main parts. First one, finished goods. Second one, work in progress. And third one, raw material. अगर कोई भी बंदा मैन्युफैक्चरिंग में तो उनके पास ये तीनों इन्वेंट्री होगी. फिनिश गुड्स होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा और रॉ मटेरियल भी होगा. अच्छा, अगर वो बंदा ट्रेडर है, then in that case he will be on something which is finished goods, but otherwise we'll have all three. So inventory represents assets that are finished goods. What are finished goods? Assets held for sale in ordinary course of business. If you're holding on to something for sale, and that is also ordinary course of business, so एक आध आइटम अगर हम assets के लेके बैठे और उसको सेल करने के लिए निकाला है तो वो इन्वेंट्री नहीं होगा. इन्वेंट्री आर certain things which we are there normally for sale. फॉर एग्जाम्पल, आज ये स्पेक्स वाले के पास गया था, तो स्पेक्स के दुकान में स्पेक्स होना, स्पेक्स आर इन्वेंट्री. अब एग्जैक्टली क्लियर बिकॉज ही इज होल्डिंग इट फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? टू गुड. बोलो. हेलो. अनलॉक था गाड़ी, बट अनलॉक कैसे अपने आप हो गया? आई डोंट नो, लास्ट टाइम तुमने लॉक ही नहीं किया होगा. तुम पागल हो क्या? मेरे को इमीडिएटली नोटिफिकेशन आता. चलो ठीक है, पर नोटिफिकेशन तो आ ही गया ना तुम्हें वैसे भी. वही. ठीक है, चलो. नेक्स्ट वन, it represents work in progress, that is assets in process of production for sale. So inventory of finished goods. Finished goods are something which is what? Assets held for sale in ordinary course of business. Work in progress is something is in process of production for sale. And third one is raw material. They are material or supplies to be consumed in production process or for rendering of services. So these are three main components of inventory. Apart from that, inventory also includes maintenance supplies, and inventory also includes consumables. मेंटेनेंस सप्लाईज का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर पीपी फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करने के लिए कोई सप्लाईज की ज़रूरत होती है लाइक ग्रीस, ऑयल, तो ये भी हमारे लिए इन्वेंट्री है. एंड ऑल्सो कंज्यूमेबल्स आर इन्वेंट्री. So inventories are finished goods, inventories are work in progress, inventories are raw material. Are we exactly clear with this one? And inventory includes consumables, and inventory also includes something which is known as what? Maintenance supplies. Too good. Then other than, it excludes. So other than what? Three things: machinery spares, servicing equipments, and standby equipments, which means the definition of property, plant and equipment. So if we have machinery spares, if we have standby equipments, if we have service equipments and they meet the definition of PP, then they will be covered under PP. Yes, but if it does not meet the definition of PP, then they may even be covered in inventory, but only if they don't meet the definition of PPE. Perfect है. So एक बार मेरे साथ पूरा definition. Inventories are assets held for sale in ordinary course of business, in process of production for sale, in form of material or supplies to be consumed in production process or for rendering of services, including maintenance supplies and consumables, excluding machinery spares, standby equipments, servicing equipments, which meets the definition of PPE. Full stop. Are we clear with that one? Too good. Measurement of inventory. सबसे बड़ा पार्ट इस चैप्टर का इज इन द मेजरमेंट, एंड सेंटर में लिखा हुआ है
बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग. Inventory should be measured at cost or NRV, whichever is less. Inventory should be measured at cost or NRV, whichever is less. Full stop. So inventories, raw material, finished goods. हाँ, अब इसके अंदर नटशेल में जाऊँ, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लेस. एक स्टैंडर्डाइज पार्ट तो बता दिया आपको, बट इन्वेंट्री 3 चीज़ों में डिवाइड किया मैंने. रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस. Most of the times, raw material does not have the active market for the manufacturer. मेरा वर्ड्स बराबर से कैचअप करना. I said raw material does not have an active market for the manufacturer. एक सिंपल क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल वड़ा पाव वाला है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हुआ? पटैटोज, पाव, मसाला, कांदा, उनके लिए रॉ मटेरियल हुआ. अब उनके लिए पटैटो का एक्टिव मार्केट नहीं है. पटैटो का एक्टिव मार्केट है, बट वड़ा पाव वाले के लिए पटैटो का एक्टिव मार्केट नहीं है. क्यों? बिकॉज दे डोंट गो, और पीपल डोंट गो टू वड़ा पाव वाला टू बाई पटैटोस. अब फॉर एग्जाम्पल मेरी मॉम ने आज मेरे को बोल दिया राहुल आलू लेके आ, तो मैं वड़ा पाव वाले के पास थोड़ी जाऊंगा आलू लेने के लिए, मैं नॉर्मल मार्केट में जाऊंगा, सब्जी मंडी में. तो मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल का एक्टिव मार्केट नहीं होता, और इसीलिए फॉर द मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट. इट इज़ नॉट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस. तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना अपना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ये सिर्फ और सिर्फ किसको अप्लाई होता है? वर्क इन प्रोग्रेस को और फिनिश गुड्स को. ये रॉ मटेरियल को अप्लाई नहीं होता. तो रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू करना चाहिए? ऑलवेज एट कॉस्ट, बट ओनली इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स is less than the cost price of finished goods, then raw material should be valued at replacement cost. Only if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, तो उसे replacement cost पे वैल्यू करना है, वरना raw material always and always cost पे होना चाहिए. Always at cost if the finished goods are sold above cost, otherwise at replacement cost. Whereas work in progress for finished goods should be always lower of cost or NRV whichever is less. अब cost में क्या आएगा, NRV में क्या आएगा, वो हम बातें करने वाले हैं. Are you exactly clear with this one? So अंडरस्टैंडिंग ये है मेरा कि मेजरमेंट प्रिंसिपल अगर मैं पढ़ रहा हूँ, वाह इसको M में क्यों नहीं रहना पता नहीं. Let me open this file once again, guys. So I'm saying we have something which is known as a measurement principle. परफेक्ट है ना. मेजरमेंट प्रिंसिपल में हमने क्या डाल दिया? कॉस्ट और NRV whichever is less. Do you agree with this one? हाँ, but now you need to remember raw material always at cost. Only if selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then it should be valued at replacement cost. But otherwise it should be always at cost. हाँ, इसके साथ अगर वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स की बात कर दूँ तो ये ऑलवेज यही फॉलो करेंगे. दैट इज इट शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस. क्लासिक है, टू गुड. सो मेजरमेंट प्रिंसिपल, फर्स्ट रॉ मटेरियल किस में मेजर करो? ऑलवेज एट कॉस्ट. बट if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then it should be valued at cost or NRV nahi, then it should be valued at replacement cost. But if you are talking about work in progress and finished goods, then it should be valued at cost or NRV whichever is less. जकास कहानी है, too good. चलिए guys, next is cost पे चले जाता है. तो अब हम लोग ने ये तो बता दिया भाई कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कॉस्ट की. सो अब हमारा काम होगा कॉस्ट कैलकुलेट करना और NRV कैलकुलेट करना. तो कॉस्ट में 1 and 2 क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, एंड सेकेंड क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, एंड सेकेंड क्या एक्सक्लूडेड होना चाहिए.
First one is included and second one is what? Excluded. Simple सी understanding. So now you said that inventory should be measured at cost or NRV whichever is less. तो अब अपना फंक्शन है, पहले कॉस्ट निकालेंगे फिर NRV निकालेंगे और whichever is less वैल्यू कर देंगे. तो पहले कॉस्ट निकालने चलते हैं. इन्वेंट्री का कॉस्ट, अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कैल्सी, तो मुझे कैल्सी का कॉस्ट निकालना है. आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस वाटर बॉटल, तो मुझे वाटर बॉटल का कॉस्ट निकालना है. आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मोबाइल फोन, तो आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल फोन. व्हाट शुड बी इंक्लूडेड? Guys, there are three things which should be included. First one, cost of purchase. Second one, cost of conversion. And third one, other costs which are incurred in bringing the inventory to its present condition and location. So that is the cost. Cost should include cost of purchase, मतलब raw material कितने में खरीदा. Cost of conversion, raw material से finished goods बनाने में कितने के खर्चे लग गए. And other cost which are incurred in bringing the inventory to its present condition and location. Clear? Too good. Exclusions. What should be excluded from the cost of inventory? Guys, four things. Abnormal wastages should be excluded. But इसका मतलब ये भी हुआ कि normal wastage हमें inventory के cost में absorb कर देना है. तो wastage जो हम expect कर रहे थे वो inventory के cost में आ जाएगी. But abnormal wastage inventory के cost में नहीं आएगी. So abnormal wastage नहीं आएगा, storage cost नहीं आएगा. Storage cost are the costs which are after the inventory is ready. मतलब inventory ready हो गया और उसके बाद अगर हम लोग उसे store कर रहे हैं, then it should not be included in the cost of inventory. Next one is administration expenses and selling expenses. अगर हम लोग अपना 11th and 12th standard का normal final accounts याद कर ले, trading and P&L. So everything that is there in the trading account is included in the cost of inventory. Everything that is not there in the trading account is excluded from the cost of inventory. So what is excluded? Abnormal wastage, storage, admin, selling. But अगर वो storage raw material का है तो yes it will be included. But अगर वो storage finished goods का, एक बार goods ready हो गए उसके बाद अगर हम उसे store कर रहे हैं तो no. So guys, storage, admin, selling and abnormal wastage. ठीक है. अब मैं नॉर्मल वेस्टेज एबनॉर्मल वेस्टेज को थोड़ा अगर डिटेल में बताऊँ ना, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 यूनिट्स ऑर्डर कर रहा हूँ एंड एवरी यूनिट्स इज कॉस्टिंग मी ₹10, तो टोटल अपना 1000 का खर्चा हो रहा है. बट जब भी मैं 100 यूनिट्स ऑर्डर करता हूँ ना, आई एक्सपेक्ट दैट 2% ऑफ व्हाट आई ऑर्डर इज गोइंग टू बी नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस मतलब यार ये नहीं आएगा बरोबर. अब फॉर एग्जाम्पल मैं वेफर के पैकेट्स ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है यार 100 वेफर के पैकेट्स ऑर्डर करूंगा ना, तो उसमें से 2% मतलब 2 वेफर के पैकेट ऐसे निकलेंगे जिसका हवा निकल गया होगा, वो वेफर्स क्रैक होंगे, समथिंग विच इज नॉट इन अ सेलेबल पोजीशन, विच इज बेसिकली नॉर्मल लॉस. तो मैं क्या करूंगा पता है, नॉर्मल लॉस बिकम्स अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, एबनॉर्मल लॉस डज नॉट. तो नॉर्मल लॉस में पहले मैं 100 into 10 करके 1000 लेके आऊंगा, फिर इसे डिवाइड बाई 98 करूंगा, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे तो सिर्फ 98 यूनिट्स ही मिलेंगे. So 1000 divided by 98, I'm getting an answer of 10.20408. Now someone tells me, Rahul, per unit cost कितना है? I'll tell them my per unit cost is only 10.20408 and not 10. 10 में मिल रहा है, वैसे बताओ ही मत, सबको बताओ 10.2 में मिल रहा है. जकास है. ये हुआ नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की कहानी. अच्छा, अब आप मुझे बताइए, मेरे साथ वर्कआउट कीजिए. इंक्लूडेड 1 2 3, एक्सक्लूडेड 1 2 3 4. व्हाट इज इंक्लूडेड? इंक्लूजन में आता है कॉस्ट ऑफ परचेज, इंक्लूजन में आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और इंक्लूजन में आता है अदर कॉस्ट. डन है. एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन में क्या आता है? एक्सक्लूजन में आता है गाइज हमारे पास एडमिन, एक्सक्लूजन में आता है हमारे पास सेलिंग, एक्सक्लूजन में आता है हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट और एक्सक्लूजन में आता है हमारे पास एबनॉर्मल लॉस. विल यू रिमेंबर दिस? वेरी सिंपल. चकास बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, शार्प ट्रेडिंग कंपनी. नाउ दैट्स व्हाट आई प्रॉमिस्ड कि आज का सेशन हर एक कॉन्सेप्ट लर्न करने के बाद क्वेश्चंस डाल के रखे मैंने. शार्प ट्रेडिंग इंक परचेजेस मोटरसाइकिल from various countries and exports them to Europe. So we are buying motorcycles from various countries and we are exporting them to Europe. The company has incurred the following expenses during 2025.
Cost of purchase 5 lakh. Trade discount 10,000. Import duty 200. Freight and insurance 250. Other handling costs related to import 100. Salary to accounting department 15,000. Brokerage commission payable to intending agents 300. Sales commission payable to sales agent 150. After sales warranty cost 600. Sharp Trading Inc. needs to determine which of the items should be included in the cost of inventory as per AS2. चलो आप मेरे साथ yes no खेलते रहना. Cost of purchase yes. Trade discount I'll say yes. लेस करना है ऑफ कोर्स बट नो नहीं बोलना है. उन्होंने कहा था कंसिडर करना है कि नहीं करना है. कंसिडर करना है, हम लेस करेंगे. इंपोर्ट ड्यूटी यस. फ्रेट एंड इंश्योरेंस यस. अदर हैंडलिंग कॉस्ट यस. गाइस सैलरी टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नो. अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का इन्वेंट्री में क्या लेना देना. ब्रोकरेज एंड कमीशन पेएबल टू इंटेंडिंग एजेंट्स yes. Guys, intending agents are the one who help us clear the goods because we are importing the goods from other countries. जैसे कस्टम ड्यूटी होता है, अगर हमारे कोई गुड्स एयरक्राफ्ट से आते हैं तो कस्टम ड्यूटी, पर अगर हमारे कोई गुड्स शिप से आते हैं तो शिप से क्लियर कराने के लिए इंटेंडिंग एजेंट्स. पर ये भी परचेज पे है तो आंसर इज यस. सेल्स कमीशन पेएबल टू सेल्स एजेंट नो. एंड आफ्टर सेल्स वारंटी कॉस्ट ऑफ कोर्स नो बिकॉज ये दोनों सेलिंग कॉस्ट हुए. सो अगर मैं कैलकुलेशन करूँ यहाँ पे जो आप मेरे साथ करिए प्लीज इज क्वेश्चन नंबर 1. आई विल से फर्स्ट वन कॉस्ट ऑफ परचेज. सर कितने में गुड्स खरीदे. भाई हमने गुड्स खरीदे 5 लाख. सो कॉस्ट ऑफ परचेज 5 लाख. लेस ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था 10,000 का. सो 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट. आंसर आ गया 4,90,000. नेक्स्ट वन import duty yes. Freight yes. So import duty yes. Freight yes. How much is import duty. 200. Freight 250. 200. Freight 250. Next one other handling charges yes. Salary to accounts department no. Intending agents का brokerage yes. So guys other handling charges 100 yes. Brokerage to intending agents. Brokerage to intending agents are 300 yes and बाकी दो is no. So guys कैलसी उठाइए. Get me the answer please. 4,90,000 plus 200, 250, 100, 300. I'm getting a total of 4,90,850. Tell me my calculations are correct. 2, 4, 7, 8, 850. 2, 4,90,850. जकास बोलिए गाइस. डन. सो कॉस्ट की कहानी क्लियर. टू गुड. गाइस कॉस्ट के अंदर एक और सेक्शन इज नोन एज फिक्स्ड ओवरहेड्स. तो कॉस्ट में इंक्लूडेड क्या है. सर कॉस्ट में इंक्लूडेड है कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट. अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर बात करूँ, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स, then I'll have something which is overheads. And overheads can be classified into fixed overheads and variable overheads. थोड़ी कॉस्टिंग की बात हो रही है. फिक्स्ड ओवरहेड्स अमाउंट से कांस्टेंट रहता है और वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट से कांस्टेंट रहता है. तो गाइस वेरिएबल ओवरहेड्स तो हम कॉस्ट पर यूनिट पे एब्जॉर्ब करेंगे, बट फिक्स्ड ओवरहेड्स हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे एट एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट विच एवर इज लेस. प्लीज अगेन विथ मी. लेक्चर्स देखते देखते अगर मेरे साथ बातें करेंगे तो मजा ही कुछ और होगी. सो गाइज फिक्स्ड ओवरहेड्स शुड बी एब्जॉर्ब्ड एट एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और budgeted cost per unit whichever is less. So fixed overheads should be absorbed at actual cost per unit or budgeted cost per unit whichever is less. Are we exactly clear with this one? Too good. एक क्वेश्चन कराता हूँ तो एक थोड़ा सा अच्छा आइडिया आएगा. So I'm looking at question number 2 which is Pluto Limited का question. Pluto Limited is a plant with normal capacity to produce 5 lakh units and of product per annum. And expected fixed overheads are rupee 15 lakh. Fixed overheads on the basis of normal capacity is 3 per unit. So guys हमने प्लान किया था 5 लाख यूनिट्स बनाएंगे, टोटल 15 लाख का खर्चा है, तो 15 डिवाइड बाय 5 आंसर इज 3 पर यूनिट. सिनेरियो 1 में एक्चुअल प्रोडक्शन 5 लाख हुआ, सिनेरियो 2 में एक्चुअल प्रोडक्शन 375 हुआ और सिनेरियो 3 में
एक्चुअल प्रोडक्शन 750 हुआ। तो गाइस दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू गाइस आर सॉल्विंग अलोंग विथ मी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट वन, ऑलवेज पहले बजटेड कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। तो बजटेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है? बजटेड कॉस्ट पर यूनिट होता है मेरा, टोटल 15 लाख का खर्चा था, उसमें से 5 लाख रुपए का हम लोग क्या कर रहे थे, यूनिट्स प्लान था। सो ₹3 पर यूनिट हमारा बजटेड था। हमारा प्लान था 5 लाख यूनिट्स बनाएंगे, और वो 5 लाख के लिए हमने 15 लाख रुपए के खर्चे किए थे। तो भाई 3 पर यूनिट खर्चा हो रहा था। अब सिनेरियो 1 में एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? एक्चुअल प्रोडक्शन 5 लाख यूनिट हुआ। तो गाइज मेरा एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मेरा एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट भी 3, मेरा बजटेड कॉस्ट पर यूनिट भी 3, तो एब्जॉर्ब 3 पे ही होगा। मतलब क्या, 15 लाख के खर्चे हुए हैं, 15 लाख से इन्वेंट्री में कितना लेना है, कितना एक्चुअल प्रोडक्शन आया 5 लाख, कितने पे एब्जॉर्ब करना है 3, टोटल कितना 15 लाख। पूरा 15 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड्स आप इन्वेंट्री में डाल दो, पूरा 15 लाख का। ठीक है सर, मतलब थोड़ी बहुत तो आइडिया आ रही है, थोड़ा और आगे लेके जाइए। सो गाइज अगर मुझे थोड़ा और आगे इसे लेके जाना है, तो सेकंड मैं कह रहा हूँ कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन 375 हुआ। अगर गाइज मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन 375 होता है तो क्या, तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट होगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 375, एंड दैट मीन्स माय आंसर विल बी ₹4 पर यूनिट। बट मेरा बजटेड अगर आपको याद हो तो 3 पर यूनिट था। गाइज मैंने प्लान की थी तभी 3 पर यूनिट आ रहा था, पर अब 4 पर यूनिट आ रहा है बिकॉज गाइज प्रोडक्शन कम हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास रेंट पे लिया था ये सोच के कि 100 बच्चे आएंगे, बट बच्चे तो 60 आए, तो मेरा कॉस्ट पे यूनिट बढ़ गया। बट व्हाट डज AS2 टेल यू कि इन्वेंट्री वैल्यू करते वक्त यू विल एब्जॉर्ब such kind of overheads, that is fixed overheads at actual or budgeted whichever is less। मतलब क्या हुआ, अब देखो हमारा 15 लाख का खर्चा तो हुआ है, कोई डाउट नहीं है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का हुआ? 375। एब्जॉर्ब कितने में करोगे? 4 और 3 विच एवर इज लेस, सो 3 इंटू 3। गाइस कैलकुलेटर, 3,75,000 इंटू 3, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 11,25,000। अब एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? टू गुड। एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कॉल करता हूँ। सो 375 इंटू 3, आंसर कम्स टू 1125। बट हमारा टोटल खर्चा तो 15 लाख का हुआ था, तो बाकी का 375 गाइज इनएफिशिएंसी है, और ये इनएफिशिएंसी रिपोर्ट होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे रिपोर्ट होनी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चकास कहानी है, टू गुड। इनएफिशिएंसी गाइज आपकी कैलकुलेशन गलत चली गई, उसका मतलब ये तो नहीं मैं पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा दूं, लोग खरीदेंगे नहीं फिर। तो इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करो। टोटल 15 लाख के खर्चे में से 11,25,000 आप लिखोगे ट्रेडिंग में, और 375 आप लिखोगे P&L में। चकास हो गया, टू गुड सर। नेक्स्ट थर्ड, सर अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन 7,50,000 यूनिट हुआ हो, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट होगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000, and I'm going to get an answer of ₹2 per unit. Do you agree with this one? But आपका एब्जॉर्प्शन कितने पे होना चाहिए? 3 पर यूनिट पे या 2 पर यूनिट पे? whichever is less, that is 2 पर यूनिट पे। तो एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 15 लाख। इसमें से हमारा प्रोडक्शन इज 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 पर यूनिट whichever is less, तो पूरा 15 लाख फिर से एब्जॉर्ब कर लो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। एंड व्हेनेवर आई से एब्जॉर्ब कर लो, आई मीन टू से कि इसे इन्वेंट्री के कॉस्ट में डाल देना। बैलेंस कितना बचेगा? नील। गाइज यहां पे आपकी एफिशिएंसी थी मोर, बट दैट्स ओके। आप भूल से 7,50,000 इंटू 3 22,50,000 एब्जॉर्ब मत कर लेना इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, बिकॉज आपका खर्चा कभी 22,50 हुआ ही नहीं है। आपका खर्चा ही कितना हुआ है? 15 लाख। तो हम ओवर बुकिंग थोड़ी कर सकते हैं खर्चे की। क्या कहते हो, बरोबर है? टू गुड।
जकास चल रहे हैं, ऑसम। चलिए नेक्स्ट वन। सो डिड यू अंडरस्टैंड, अभी भी हम लोग कॉस्ट के पैरामीटर्स में हैं। Cost, inventory should be valued at cost or NRV, whichever is less. Cost should include cost of purchase, cost of conversion, other cost, and cost should exclude abnormal wastages, storage, admin, and selling. And the cost of conversion may fixed overheads should be absorbed at actual cost per unit or budgeted cost per unit, whichever is less. Wow. Guys, next कहानी आ रही है joint product and byproduct में. So joint product, byproduct. Wow. So I'm talking about joint product, I'm talking about byproduct, and I'm talking about scrap. Guys, production process में you can face these three things: joint product, byproduct and scrap. Scrap का क्या करे? Guys, scrap को scrap value पे measure करो और हमारे cost of production से minus कर देना. इन शॉर्ट, अगर हम कुछ बनाते वक्त स्क्रैप बन रहा है और उसे बेच रहे हैं तो इसे स्क्रैप पे मेजर कर दो और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाना चाहिए उससे. नेक्स्ट वन, सर बाई प्रोडक्ट का क्या करोगे? गाइस, बाई प्रोडक्ट को ऑलवेज एनआरवी पे मेजर करना. नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब इसे बना के हाथ में कितना पैसा आएगा उस पे मेजर करना. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? टू गुड. गाइज, अगर इसमें कोई प्रॉफिट हो रहा हो बेच के या कोई लॉस हो रहा हो बेच के तो गाइज उसे इग्नोर कर देना. लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली अकाउंट हो जाएगा, पर अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसे इग्नोर कर देना. अच्छा सर, अब जॉइंट प्रोडक्ट का क्या करूं? भाई देखो, प्रोडक्शन प्रोसेस बनाते बनाते अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाता है तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें स्प्लिट करना पड़ेगा. I'll have to split it between the joint product. It should be done at some rational and reasonable basis. Rational and reasonable basis का एक एग्जाम्पल है सेल्स वैल्यू के बेसिस में उसे स्प्लिट कर देना. किसके बेसिस पे स्प्लिट कर देना? सेल्स वैल्यू के बेसिस पे स्प्लिट कर देना. विल यू रिमेंबर दिस? टू गुड. चलिए, सो गाइस, हम अभी भी कॉस्ट की ही बातें कर रहे हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट. तो अगर हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में जॉइंट प्रोडक्ट हो या बाई प्रोडक्ट हो या स्क्रैप हो, then we should value it at first scrap at scrap value, byproduct at NRV, and joint product at some rational and reasonable basis, that is sales value के basis पे. ठीक है? So scrap should be valued at scrap, byproduct should be valued at NRV, profit element should be ignored, joint product, the remaining cost should be allocated on some rational and consistent basis. Are we exactly clear with this one? I love this AI created notes, you know, it adds so much of flavor to the understanding. चलिए गाइज, एक क्वेश्चन है मेरे पास. सो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. 1. In manufacturing process of Mars, one byproduct BP emerges besides that two main products MP1, MP2 apart from scrap. Love this question, personal favorite है. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्क्रैप भी बन रहा है, बाई प्रोडक्ट भी बन रहा है और दो मेन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं MP1, MP2 और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है. फर्स्ट वन, raw material 150, wages 90,000, fixed overhead 65,000, variable overheads 50,000. guys, MP1 5,000 units बन रहा है, MP2 4,000 units बन रहा है, बाई प्रोडक्ट 2,000 units बन रहा है, स्क्रैप भी बन रहा है, भूलना मत. और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 250 और 100 है. Guys, average market price of MP1 and MP2 are 60 and 50 respectively. Byproduct is sold at 20 per unit. This is the profit of 5,000 on the sale of byproduct. After incurring separate processing charges of 8,000 and packing charges of 2,000, 5,000 was realized from the sale of scrap. Okay, guys, क्या कह रहा हूँ मैं? Question number 3. सबसे पहले cost of production ले लेते हैं. Raw material था, wages था, fixed overheads था, वेरिएबल ओवरहेड्स था. फर्स्ट वन, रॉ मटेरियल 1,50,000, वेजेस 90,000, फिक्स्ड ओवरहेड्स 65,000, वेरिएबल ओवरहेड्स 50,000. So 150 plus 50 is 2 lakhs, 290, 290 plus 65. So guys, we have 2,90,000 plus 65,000, 3,55,000. I hope you are very clear with that. Too good. Guys, सबसे पहले स्क्रैप निकाल दो. स्क्रैप को किस पे मेजर करना है? स्क्रैप वैल्यू पे. तो स्क्रैप आ रहा था 5,000. सो 5,000 स्क्रैप माइनस 355 माइनस 5 इज 350 बचा. गाइस, माइनस क्या करेंगे? बाई प्रोडक्ट. बाई प्रोडक्ट के इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2,000 यूनिट्स बने थे.
and they said byproduct can be sold at 20 per unit, but byproduct should be always measured at NRV. Let's not forget that. So the idea is कि guys बाई प्रोडक्ट को बनाने में प्रोसेसिंग चार्जेस लग गए थे 8,000 और 2,000 पैकिंग चार्जेस लग गए थे, तो ये तो कॉस्ट में से माइनस होगा बिकॉज अल्टीमेटली उसका तो फ़ायदा आया नहीं. सो कितने में बेचा? 2,000 इंटू 20, बट उसके बाद 8,000 के प्रोसेसिंग चार्जेस, 2,000 के पैकिंग चार्जेस, एंड ये सब करने के बाद प्रॉफिट हुआ था 5,000 एंड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. 2,000 into 20 minus 8,000 minus 2,000, I'm getting an answer of 30,000. So byproduct is sold at 30,000. 350 minus 30, answer is 3,20,000. Are we exactly clear with this one? Too good. Continuation. चलिए गाइस, अब मेन प्रोडक्ट बना तो हमारा टोटल कॉस्ट था 3,20,000. यू अंडरस्टैंड दैट जॉइंट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आई कैन हैव समथिंग विच इज़ नोन एज बटर एंड आई कैन हैव समथिंग विच इज़ क्रीम. तो बटर एंड क्रीम बोथ आर मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क से बनते तो हमने मिल्क से प्रोडक्शन करना चालू किया, बटर बना, क्रीम बना. अब मुझे ये टोटल कॉस्ट है, इसमें से बटर कितना और इसमें से क्रीम का कॉस्ट कितना वो अंडरस्टैंड करना है. सो स्टैंडर्ड कहता है कोई रैशनल और रीजनेबल बेसिस यूज़ करना. सबसे पहले इक्वली डिवाइड मत कर देना बिकॉज दोनों को बनाने में एग्जैक्टली उतना ही खर्चा नहीं लगा होगा. बटर में थोड़ा सॉल्ट डालना पड़ा होगा, क्रीम में कुछ और करना पड़ा होगा, है ना. गाइस सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी मत करना बिकॉज अलग अलग क्वांटिटी में बने होंगे. ज़रूरी थोड़ी कि एग्जैक्ट बटर एंड क्रीम सेम क्वांटिटी में बनाओ. तो उन्होंने कहा है सेल्स वैल्यू पे करना. सेल्स वैल्यू बहुत सिंपल है. MP1 5,000 बना था, MP2 4,000 बना था. सो आई एम सेइंग MP1 एंड आई एम सेइंग MP2. MP1 5,000 बना था और MP2 4,000 बना था, multiplied by cost per unit. Guys, MP1 is 60 per unit and MP2 is 50 per unit. MP1 is 60 per unit, MP2 is 50 per unit. तो मेरा सेल्स वैल्यू बनेगा 5,000 इंटू 60. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 3 लाख एंड आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 2 लाख. सो 3 लाख एंड 2 लाख के रेशियो में, मतलब 3:2 के रेशियो में आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बांटेंगे. Now 3,20,000 को मैं 3:2 के रेशियो में बांटू. 3,20,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 1,92,000 and 1,28,000. Tell me, am I correct or not, guys? चकास है. प्लीज़ कैलसी अपने हाथ में रखिए. ये कॉस्ट हुआ. और गाइज अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो 1,90,000 डिवाइड बाय 5,000 यूनिट्स ऑफ MP1 एंड डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट्स ऑफ MP2. सो 1,92,000 divided by 5,000 of MP1, I am getting an answer of rupee 38.4 per unit. एक बार वापस चेक कर लेते हैं. 1,92,000 divided by 5,000 is 38.4. 1,28,000 divided by 4,000, आंसर is 32 per unit. और अब अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो इतना सिंपल काम हो गया ना. आपको समझा? So this question was heavily dependent upon something which is known as what? Scrap should be always measured at scrap value. Byproduct should be valued at NRV. Joint product at some rational and reasonable basis, and sales value is always considered as rational and reasonable basis. चकास है? Too good. इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक. MP1 का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 250 यूनिट्स. और MP2 का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 100 यूनिट्स. 250 into 38.4, 100 into 32, 100 into 32 is 3,200, and 250 into 38.4, 250 into 38.4, I'm getting 9,600. 3,200 plus 9,600, I'm getting an answer of 12,800. Are you all getting an answer of 12,800, guys? Awesome. Too good. जकास है? Lovely. चलिए, वी प्रोसीड अहेड. ये हो गया जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की बात है. तो ये बात हम लोग ने कंप्लीट की कॉस्ट की. तो अब इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालना आ गया आपको. कॉस्ट शुड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट. कॉस्ट शुड एक्सक्लूड द एडमिन कॉस्ट, द सेलिंग कॉस्ट, द एबनॉर्मल वेस्टेजेस, एंड द लास्ट वन द स्टोरेज कॉस्ट. बट स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होगा तो इंक्लूड हो जाएगा. टू गुड.
अब अगर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना आ गया तो हम एनआरवी कैलकुलेट करेंगे। बट पहली बात तो बहुत क्लियर है, एनआरवी रॉ मटेरियल की निकालनी नहीं है, बिकॉज आपको याद हो तो रॉ मटेरियल शुड बी ऑलवेज वैल्यूड एट व्हाट, कॉस्ट, बट ओनली इफ the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then it should be valued at the replacement cost. तो एनआरवी निकालना किसका है? एनआरवी निकालना है फिनिश गुड्स का, और एनआरवी निकालना है वर्क इन प्रोग्रेस का। गाइस, एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स, एनआरवी का फील क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू मींस इन्वेंट्री हमने बेचा तो अल्टीमेटली हाथ में कितना पैसा आएगा, दैट इज नोन एज एनआरवी। क्लियर है? टू गुड। तो बेचने से आएगा कितना, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। बट कभी कभी क्या होता है ना, बेचने में सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, सो लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब आप ना एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सब कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं माने जाते। सेल्स करने के बाद जो खर्चे होते हैं अल्टीमेटली वो सेल कंक्लूड करने के लिए, उसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स मानते हैं। दे कैन बी लाइक डिलीवरी चार्जेस। सो फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक मैंने एक टीवी खरीदा एंड आई बॉट इट फ्रॉम विजय सेल्स। उन्होंने ये टीवी घर पे डिलीवर किया, मुझे तो फ्री में डिलीवर किया, बट उनको तो खर्चा हुआ होगा ना। तो उन्होंने टीवी बेचा मुझे 20,000 में, बट डिलीवरी करने का जो खर्चा है वो माइनस करेंगे, एंड दैट इज नोन एज योर एनआरवी। सो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस द कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड वी गेट द आंसर। नेक्स्ट वन इज वर्क इन प्रोग्रेस। सर वर्क इन प्रोग्रेस का फिनिश गुड मतलब निकालना है एनआरवी, तो कैसे करोगे? गाइस, वर्क इन प्रोग्रेस है ना गुड्स प्रोसेस में, तो इन्हें कंप्लीट करके पहले फिनिश गुड्स बनाना पड़ेगा। वर्क इन प्रोग्रेस, इन प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस होता है, वो वर्क इन प्रोग्रेस को हम मार्केट में नहीं बेच सकते। आधी चीज़ों को कैसे मार्केट में बेच दे? वड़ा पाव बन रहा है, चलो भाई टिक्की बना ली, फ्राई नहीं की तो कैसे बेच सकते हो? शर्ट बन रहा है, शर्ट आधा बन गया, कैसे बेच सकते हो? तो बेचना तो फिनिश गुड्स ही है। तो यहाँ पे मुझे फिर से एक बार क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे फिर से एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस चाहिए, बट दिस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आई वांट ऑफ फिनिश गुड्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। ऑफ कोर्स ये सारे एस्टिमेशन है, लेट्स नॉट फॉरगेट इट, बिकॉज एक्चुअल तो जब होगा तब पता चलेगा। सो लेस एस्टिमेटेड गाइस, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, बिकॉज हमें वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन नहीं आता है या कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं आता, बट वर्क इन प्रोग्रेस में कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। डू यू एग्री विद दिस वन? पक्का? कोई डाउट आपको? टू गुड, जकास। चलिए, so this is estimated selling price less estimated cost of sale, and second one is estimated selling price less estimated cost of sale less estimated cost of completion. जकास है। This is NRV. So guys, NRV, estimated selling price less estimated cost of completion required to complete the production process, less estimated cost to make the sale, selling costs such as commission and marketing expenses and so on. तो हमें NRV मिल जाएगा। NRV is estimated selling price in ordinary course of business less estimated cost of completion less estimated cost necessary to make the sale. अब एक फॉर्मूला दिया है उन्होंने, फिनिश गुड्स में अपने को याद रहना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं आएगा, बस दैट्स इट। बट इफ समबडी टेल्स मी हाउ मच डू आई कैलकुलेट एनआरवी, देन एनआरवी इज नथिंग बट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। चकास बोलो। टू गुड। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये चैप्टर मैंने क्वेश्चन से लोडेड रखा है, ठीक है। लोग कहते हैं सर क्या हमारे लेक्चर्स में थियोरी होगा? हाँ। क्या हमारे लेक्चर्स में प्रैक्टिकल होगा? ऑफ कोर्स होगा यार। आई एम गेटिंग यू रेडी फॉर द एग्जामिनेशन एंड स्कोर इन एग्जामिनेशन बॉस। Partly finished goods, first one, cost of partly finished goods at the end of the year is 150. The unit can be finished in the next year with a further expenditure of 100. Finished units can be sold at 250 subject to the payment of 4% brokerage on the selling price. So guys, एक छोटा सा नटशेल में मैंने यहाँ पे काम भी कर दिया है। करंट कॉस्ट कितना? कॉस्ट इज 150। एनआरवी निकालना है। सो गाइज, एनआरवी, व्हाट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? 250। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज 250 less, guys, estimated brokerage cost of sale is 10, so less the brokerage is 10, less the cost of completion is 100, less the cost of completion is 100.
So guys, ये हो गया 140. Now you will measure at 150 or you will measure at 140. Guys, 140, whichever is less. So NRV निकालना आ गया. और measurement principle की कहानी भी समझ गई होनी चाहिए. That inventory should be measured at cost or NRV, whichever is less. Awesome. Too good. This was my question number 4. Guys, the last part of the chapter in terms of theory basically is known as inventory valuation technique. So chapter nutshell में बहुत छोटा है. If people tell you what is this chapter all about, then I tell them, guys, AS2 is the definition. Inventories are assets held for sale in ordinary course of business in process of production for sale in form of material or supplies to be consumed in production process or for rendering of services, which is including the consumables and machinery, maintenance supplies, and excluding spare parts, standby equipments, and basically replacement parts, or I would rather say same, which meets the definition of PP. So ये कहानी हुई. Then inventory should be valued at cost or NRV, whichever is less. The cost should include the cost of purchase, the cost of conversion, other cost. उसके अंदर cost of conversion में अगर fixed units हो, then it should be valued at cost or estimated budgeted cost per unit or actual cost per unit, whichever is less. And second one is exclusions, abnormal wastages, storage, admin, selling. उस पर भी questions कर लिए. फिर आता है NRV. NRV is nothing but estimated selling price minus estimated cost of completion minus estimated cost of sale. So guys, एक last part is inventory valuation technique. अब inventory को value करना है तो उसके techniques क्या है? तो उसके पहले inventory को classify करो कि वो interchangeable है या वो interchangeable नहीं है. Interchangeable का मतलब क्या होता है? अब ये कैल्सी है, कंपनी कैल्सी बना रही है. क्या ये कैल्सी सिर्फ एक ही बनता है कि ऐसे ही बहुत सारे कैल्सी बनते हैं? सर ऐसे ही बहुत सारे कैल्सी बनते हैं. तो दिस इज नोन एज इन्वेंट्री विच इज इंटरचेंजेबल. अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है तो हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट वन इज नोन एज हिस्टोरिक एंड सेकंड वन इज नोन एज नॉन हिस्टोरिक. हिस्टोरिक का मतलब है कि इन्वेंट्री बनने में हम हर एक चीज जो लगती है उसका कॉस्ट मेंटेन करता है. तो हिस्टोरिक में हम दो मेथड यूज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड सेकंड वन इज नोन एज वेटेड एवरेज. आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक और नाम है लीफो, बट एज पर AS2 वी कैन नॉट यूज दैट. लास्ट इन फर्स्ट आउट सेंस नहीं बनता. नॉन हिस्टोरिक मेथड का मतलब होता है कि हम यहाँ पे हर एक यूनिट ऑफ इन्वेंट्री की डिटेल्स नहीं रखते. मतलब इन्वेंट्री बनने में क्या क्या कितना गया ये डिटेल्स हमारे पास नहीं है. तो यहाँ पे दो मेथड चलता है. वन इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड सेकेंड वन इज नोन एज रिटेल इन्वेंट्री. रिटेल इन्वेंट्री बेसिकली कॉस्मेटिक्स में चलता है. मैं कभी कभी अपने वाइफ के साथ शॉपिंग करने चले जाता हूँ. तो भाई मैडम एक बार लिपस्टिक खरीद रहे थे. लिपस्टिक वाले को बोला मुझे रेड लिपस्टिक चाहिए. अब लिपस्टिक वाले ने 50 रेड लिपस्टिक दे दिए, वहाँ पे 50. अभी क्लियर विद दैट वन. भाई एक 5 रुपए का था और एक 5 लाख रुपए का था. मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? बोलता सर अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग ब्रांड्स है. मतलब कहाँ से खरीदते हो? बोलता सर ये सब चाइना से आता है एंड चाइना से कंटेनर भर के आ जाता है. अब चाइना से इतना बड़ा कंटेनर भर के आ जाता है तो गाइस दे एक्चुअली डोंट नो कि हर एक इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना है. बट व्हाट दे नो पता है, सबके पीछे एक MRP लिखा हुआ है एंड दे नो देयर प्रॉफिट रेशियो. सो गाइस रिटेल इन्वेंट्री कहाँ चलता है? रिटेल इन्वेंट्री मेथड चलता है अगर हम सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट एलिमेंट निकाल दे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा. तो सेलिंग प्राइस माइनस GP इज इक्वल टू द कॉस्ट. सर अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल ही ना हो तो? गाइस इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल ही ना हो तो हमें एक ही मेथड है, एक्चुअली मेथड नहीं है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का मतलब है हर एक यूनिट ऑफ इन्वेंट्री अलग उठाओ मेजर करो, अलग उठाओ मेजर करो. मुंबई में एक बहुत फेमस ब्रांड है, कार्स बनाते हैं, DC, दिलीप छाबरिया कार्स. हर एक कार एक अलग यूनिट होता है उन लोग के लिए एंड दे पुट लॉट ऑफ एस्थेटिक्स इनसाइड. तो एस्थेटिक्स गिज़मोस क्या क्या नहीं लगाते यार वो लोग कार में. तो एवरी कार का मेजरमेंट अलग. सो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स की कोई मुझे बात करे तो मैं सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ गाइस, वन, इट शुड बी इंटरचेंजेबल, नॉट इंटरचेंजेबल. If they are not interchangeable, specific identification method khatam. If it is interchangeable, one, then
it is historic, non-historic. If it is historic, FIFO weighted average. If it is non-historic, then we have something which is known as standard costing and retail inventory method. Historic में FIFO weighted average, non-historic में retail inventory standard costing. Specific identification method for inventory not ordinarily interchangeable. चकास है, too good. क्वेश्चन सर, कितने क्वेश्चन? भाई आप ही सोचो हम कितने क्वेश्चंस करना चाहते हैं. Question number 5. And you know the best part about these questions, I have picked up all these questions from a compiler. That means ये most of the time सारे examination questions है. Mercury uses periodic inventory system. The following information relates to 2011 and 12. Date April, May, September, Feb. April में opening units है, purchase. Total units 1000 दे दिए, cost per units दे दिया, total cost भी दे दिया. अब ये लोग अपने को कह रहे हैं कि सर 31 मार्च 2012 को आपके पास 400 यूनिट थे, मतलब हमारे पास क्लोजिंग में 400 यूनिट थे. Mercury needs to calculate ending inventory value and the cost of sale using FIFO and using weighted average method. FIFO और weighted average method पे हमें काम करना है. 400 यूनिट्स की बात हो रही है. सो गाइज, अगर हम 400 यूनिट्स क्लोजिंग की बात कर रहे हैं और अगर हम लोग FIFO फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 400 कौन से बचे होंगे पता है? लास्ट वाले में से. एक तो ये 350 बचा होगा और 50 बचने थे, तो ये 400 में से 50 बचा होगा. तो गाइस 350 यूनिट FIFO में मैं क्लोजिंग निकाल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए भी कहा है. तो 350 यूनिट बचे होंगे एट द रेट ऑफ 14. एंड गाइस 50 यूनिट बचा होगा एट द रेट ऑफ 12. So 350 into 14, calculator. I'm getting 4,900 and 50 into 12, 600. So I have 50 into 12 is 60. 600. Total comes to 5,500. 5,500 is my closing stock. Second, sir, अगर cost of sale निकालना हो, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालना तो बहुत सिंपल काम हो गया. टोटल कॉस्ट हमें दिया था 12,250, उसमें से हमारे पास 5,500 का 12,250 में से 5,500 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है. सो गाइस 12,250 माइनस 5,500, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 6750. क्या मिल गया हमें? 6750. वी गॉट समथिंग विच इज नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स. चकास है. सेकेंड, सर अगर आप वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हो तो गाइज, अगर हम वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं तो सिंपल हो जाएगा. और बिकॉज यहाँ पे हमें ये नहीं सोचना है कि ये पहले गया और ये पहले गया. हमें अंडरस्टैंडिंग में क्या चाहिए, यहाँ पे पहले वेटेड एवरेज निकाल लो. तो टोटल हमारा 12,250 का कॉस्ट था, उसको 100,000 यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा वेटेड आ जाएगा 12.25. और अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 400 यूनिट इंटू 12.25 सीधा. So 400 यूनिट इंटू 12.25, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 4,900 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग. एंड मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा? सर आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा 12,250 माइनस 4,900. सो 12,250 माइनस 4,900, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 7350. टेल मी जकास. टू गुड. Amazing. चलिए, so that was my question number 5. I hope you are understanding this well. Guys, अब ना चैप्टर में कुछ नया लर्न नहीं करना है. So it's all about practice. तो question number 6. RM uses raw material A to produce finished goods B. We need to calculate both the value of raw material and the finished goods का closing stock as per AS2, which mandates valuation at lower of cost and the NRV. रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग बैलेंस में अपने पास 750 यूनिट्स है, जिसका कॉस्ट प्राइस 150 है, जिसका फ्रेट इनवर्ड 10 है और जिसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट 152 है. तो गाइस पहले मैं रॉ मटेरियल ए की बात कर लेता हूँ. एंड आई एम लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास रॉ मटेरियल है 750 यूनिट्स है, इनटू जिसका कॉस्ट प्राइस
गाइस 150 है बट फ्रेट इनवर्ड 10 है, तो इट इज़ 150 प्लस 10 इज इक्वल टू 160, और जिसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट गाइस 152 है। अब भूल से ये मत ले लेना दैट इट शुड बी कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लेस, आंसर इज नो. It should be always valued at cost, but only if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then it should be valued at replacement cost. तो रॉ मटेरियल की वैल्यू आपको फिलहाल नहीं मिल सकती है, तो इसीलिए मैं आगे जाऊंगा और मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे फिनिश गुड्स की वैल्यू पहले. सो आई विल गो टू फिनिश गुड्स. अब फिनिश गुड्स में क्या है? फिनिश गुड्स में हमारे पास 1600 यूनिट्स है. 1600 यूनिट्स इनटू, अब इसका कॉस्ट निकालना है और इसका NRV निकालना है विच एवर इज लेस. इसका सेलिंग प्राइस 360 था एंड you are required to value the closing stock of raw material and finished goods as per VS2 and the selling price of finished goods are 360 per unit. वो 360 per unit दे दिया था, तो NRV 360 है. मैं देख रहा था कि और कोई खर्चा हो रहा है क्या NRV का, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल है या कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है. कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन तो होता नहीं है फिनिश गुड्स का, बट कॉस्ट ऑफ सेल हो सकता है, तो दिया नहीं है. अब कॉस्ट की बात करते हैं. कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम 225, डायरेक्ट लेबर 75, वेरिएबल ओवरहेड 60. So 225 plus 75 plus 60. Fixed overheads. Fixed overheads are 1 lakh and the normal capacity is 20,000 units per annum. और इसमें actual production की कोई बात नहीं की, तो I will assume 20,000 units produce हुए हैं. तो 1 lakh divided by 20,000, I'm getting 5 per unit as my fixed overheads cost per unit also. So guys, now the total 225 plus 75 is 300 plus 60 is 360 plus 5 is 365. So 365, lower of the two, the lower of the two is NRV. So we should value this at 360. Now 1600 into 360, I'm getting 5,76,000 as my total for finished goods. अब चले जाते हैं रॉ मटेरियल में. रॉ मटेरियल में the selling price of the finished goods is less than the cost price of finished goods and hence it should be valued at replacement cost, hence it should be valued at 152. So I have got 750 into 152, I'm getting 1,14,000. Therefore my total finished goods are equal to 1,14,000 plus 5,76,000 is equal to 6,90,000. Tell me, Jackass. Too good, guys. Awesome. Clear. चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने भर के रखा है ये चैप्टर क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर विथ मी सो दैट यू स्कोर एग्जाम में एग्जाम्शन. क्या कहते हो? चलिए गाइज, फर्स्ट inventory valuation of RM. RM needs to determine the value of inventory on 31st of March 2025, which includes raw material, partly finished goods and finished goods. 1. 900 units of raw material, X purchased at 100, replacement cost is 80. Guys, 1. फिर से एक बार. Raw material. कितना units? 900. How much is the cost price? The cost price is 100. How much is the replacement cost? Replacement cost is 80. किस पे मेजर करेंगे? फिनिश गुड्स पे डिपेंड करता है. सेकेंड, वर्क इन प्रोग्रेस 400 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स. सो वर्क इन प्रोग्रेस के कितने यूनिट्स थे? 400 यूनिट्स थे of partly finished goods in the process of producing P. Cost incurred till date is 245. These units can be finished in the next year by additional cost of 50. Guys, इसका cost है 245. इसका NRV निकालना है. इसका NRV is the estimated selling price of the finished goods. How much is estimated selling price of the finished goods? 280. Guys, minus the cost of sale is 5%. 280 का 5%. Answer is 14. 14 minus the cost of completion 50 minus the cost of completion 50. Calculator. 280 minus 14 minus 50.
I'm getting an answer of 216. So it should be valued at cost or NRV, whichever is less. NRV is less, that is 216. I hope you guys are understanding this. Estimated selling price 280 minus 5%. So 14 minus 280 minus 14 is 266 minus 50 is 216. So 216 पे measure होगा. So 400 into 216, I'm getting an answer of 86,400. And now I'll go to the next one, that is finished goods. Guys, finished goods के कितने units थे? 800 units थे. 800 units थे. इसका cost price कितना था? इसका cost price था 295. Cost price 295. बट इसका NRV था गाइस 280 माइनस 14. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन मत डाल देना, फिनिश गुड्स को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है. सो 280 minus 14, I'm getting an answer of 266. I hope you guys are catching this up very well. So guys, this is going to be at 266. So ये calculate हुआ है 216 पे, ये कैलकुलेट होगा 266 पे, और क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस है तो ये वैल्यू होगा 80 पे. सो वी आर गेटिंग द आंसर्स नाउ इनटू 80 into 266. So guys, 900 into 80, I'm getting 72,000 का raw material. 800 into 266, 2,12,000 का finish, 2,12,800 का finish goods, 86,400 का 1 and 2 and 3. The total now is 72,000 plus 86,400 plus 2,12,800. I'm getting an answer of 371,200. Tell me, are you getting this answer? Fabulous. चलिए, this is question number 8. 7 ऊपर का 6, ऊपर का 5, 5, 6, 7, 8. ओ भाई, awesome question. मेरा पर्सनल फेवरेट अगेन. सो ये 8 नहीं था, ये 7 था. अब 8 हम वापस करेंगे. ये 6 था, ये 7 था. परफेक्ट. क्वेश्चन 8. दिस इज माई पर्सनल फेवरेट अगेन. RM Limited seeks to value the inventory as per AS2 for the year ended 31st March 2025. This involves assessing both the raw material and the finished goods, considering the production cost, capacity utilization, and prevailing market condition. Raw material 20,000 kgs at 4 lakh. Opening stock of finished goods 2,000 units at 1 lakh. Opening raw material is 2,200 at 44,000. Direct labor, fixed overheads. Sales at 20,000 at 11 lakh 20, and closing inventory of finished goods at 2,400, and closing inventory of raw material is 1,800. The normal plant capacity is 30,000 per annum, but the actual production was only 20,400 units per annum. A significant fall in market demand means finished goods are now expected to sell at 40 per unit, down from the previous selling price of 50. The replacement cost of raw material has also fallen to 10-19 per kilogram. So guys, lovely question. First one, raw material. Raw material का units कितना था? Closing raw material was 1,800 units, 1,800 kg per unit. सर इसका cost price कितना था? रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्राइस गाइस क्लियरली फर्स्ट लाइन पे 4 लाख यूनिट्स आपने 20,000 यूनिट्स पे खरीदे, तो 4 लाख यूनिट्स डिवाइड बाय 20,000, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 20 पर यूनिट. आपके लिए कैलकुलेशन लिख देता हूँ. 4 लाख डिवाइड बाय 20,000 इज इक्वल टू ₹20 पर यूनिट. और इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना था? इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट नीचे जाके कहीं 19 दे दिया था. सो इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ₹19 पर kg. अब कॉस्ट पे लेना है या NRV पे लेना है या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लेना है, ये फिनिश गुड्स पे डिपेंड करता है. अब जाते हैं हम लोग फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स थे? 2,400 यूनिट्स थे. 2,400 यूनिट्स. सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम. गाइज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था? 2,000. परचेज कितना किया? 20,000. क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 2,200. सो रॉ मटेरियल ओपनिंग 2,200 था, परचेज 20,000 था, एंड क्लोजिंग 2,000 था. सो आई गेस वी आर कंज्यूमिंग 2,200 यूनिट्स. रॉ मटेरियल की बातें हो रही है. डू यू अग्री विद दिस वन?
नहीं, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग, माय बैड, रॉ मटेरियल कंज्यूम के मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग था 2200, परचेज था 20,000 और क्लोजिंग था 1800। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपना बनना चाहिए 2200 प्लस 20,000 माइनस 1800 इज 20,400, जो इस क्वेश्चन में दे भी दिया था। एक्चुअली ये क्वेश्चन में नहीं देते ना तो भी हमें ये कैलकुलेट करना आना चाहिए जैसे मैंने अभी किया है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। चकास है। सो वी हैव 20,400 यूनिट्स, 20,400 units into the cost per unit is 20. So 20,400 into 20, 4,08,000 का क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल। परफेक्ट है, टू गुड। नेक्स्ट वन, वेजेस कितना आया, 3,06,000। सो गाइस वेजेस 3,06,000। गाइस फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना आया, अब फिक्स्ड ओवरहेड्स का प्रोविजन याद होना चाहिए, इट शुड बी एक्चुअल कॉस्ट पे यूनिट और बजटेड कॉस्ट पे यूनिट विच एवर इज लेस। तो 3 लाख था, नॉर्मल कैपेसिटी 30,000 था, सो बजटेड था आपका 3 लाख डिवाइडेड बाय 30,000 is equal to 10 per unit. I hope you understand, 3 lakh divided by 30,000. So 3 lakh divided by 30,000 is 10 per unit. But actual production सिर्फ 20,400 units ही आया. So actual cost per unit is equal to 20,400 ही आया. मतलब 3 lakh divided by 20,400. Calculator. 3 lakh divided by 20,400. I'm getting an answer of 14.70588. Guys, whichever is less, 10 is less. तो यहाँ पे आना चाहिए सिर्फ 20,400 into 10. So 20,400 into 10, ये आना चाहिए सिर्फ 2,04,000. चकास कहानी है, 3 लाख नहीं आना चाहिए, 96,000 का इनएफिशिएंसी रिपोर्ट होगा जो P&L अकाउंट में चला जाएगा। अब मैं टोटल कॉस्ट लेता हूँ, दिस इज 1, 2 and 3, 2,04,000 प्लस 3,06,000 प्लस 4,08,000 प्लस 3,06,000 प्लस 2,04,000, 9,18,000 and 9,18,000 divided by 20,400 units produced, divided by 20,400 units produced, I am getting an answer of 45. So guys, finished goods का cost price is 45 और उसका NRV इन्होंने कहा था भाई मार्केट में डिमांड कम हो गया है, 40 हो गया है, पहले 56 था, क्या लोगे सर, 40 लेंगे, तो 40 विच एवर इज लेस इज 40. सो 2,400 इंटू 40 लेंगे, सो 2,400 इंटू 40, आई एम गेटिंग 96,000 का फिनिश गुड्स. आई होप यू ऑल आल्सो गेटिंग द सेम आंसर. एंड वन मोर थिंग गाइज, रॉ मटेरियल इसको भी तो हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे because the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods. So this is into 19. So 1,800 into 19, I'm getting an answer of 34,200. 34,200 plus 96,000. I'm getting a total value of 1,30,200. Tell me, you guys are doing fantastic work on this. Chakas hai. I hope you're understanding this very well, that it should be valued at cost or NRV, whichever is less. Raw material should be valued at cost, but only if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then it should be valued at cost or नहीं, it should be valued at replacement cost. फिर से एक बार, raw material should always be valued at cost, but only if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then it should be valued at replacement cost. चकास है, too good. एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लीव यू टुडे इज कॉस्ट एंड अलोकेशन ऑफ मटेरियल. तो ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की कहानी है. एन एंटरप्राइज ऑर्डर 20,000 kgs ऑफ मटेरियल एट 110 per unit. द परचेज प्राइस इंक्लूडिंग GST is 12 per kg, with respect of which full input credit is available. So purchase price includes the GST जिसका टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, तो आप वो 12 वहाँ से निकाल दो बिकॉज उसका तो टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है. Freight incurred amounted to 1,17,600. Normal loss in transit is 2%.
The enterprise actually received 19,500 and consumed 18,000 kgs of material. You are required to calculate cost of material per kg and allocate the material cost based on the consumption and the stock. Guys, first one, question number 9. पहले निकालना है कॉस्ट. तो कॉस्ट निकालने के लिए 110 में से 12 तो जीएसटी था, तो 110 में से मैंने 12 जीएसटी निकालना है तो 98 आ जाएगा. अब 98 तो हमारा परचेज प्राइस हो गया. सो परचेज कॉस्ट है 20,000 यूनिट्स पे 98. डू यू अग्री विद दिस कैलकुलेटर? 20,000 यूनिट्स पे 98 इज 19,60,000 का परचेज कॉस्ट. प्लस गाइस फ्रेट हुआ था 1,17,600 का, 1,17,600 का फ्रेट डिवाइडेड बाय, गाइस हमने ऑर्डर किए थे 20,000 यूनिट्स, बट हमारा नॉर्मल लॉस था 2% का. तो गाइस 20,000 यूनिट्स का 2% 400 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस होता है, तो 19,600 का एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है. समझा? तो इसको हम डिवाइड करेंगे 19,600 से ही. क्लासिक है. सो गाइस 19,60,000 plus 1,17,600 divided by 19,600, I am getting an answer of 106 per unit. मैं लोगों को 110 पर यूनिट नहीं बोलूँगा, 98 पर यूनिट नहीं बोलूँगा, 106 पर यूनिट बोलूँगा. क्यों 106 पर यूनिट? बिकॉज नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब हो जाता है. इसे डिवाइड बाई 20,000 नहीं करना है, डिवाइड बाई 19,600 ही करना है. समझा? तो गाइस हमारा टोटल कॉस्ट कितना हुआ था? हमारा टोटल कॉस्ट हुआ था 19,60,000 प्लस 1,17,600 इज 20,77,600 विच वॉज फॉर 19,600 यूनिट्स. अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारा एक्चुअल रिसीव्ड कितना हुआ था? सिर्फ 19,500. तो भाई पहले तो यहाँ पे मैं 19,500 का एक्चुअल रिसीव्ड है, 100 का एबनॉर्मल लॉस हो गया. अब 100 का जो एबनॉर्मल लॉस है वो तो हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इसे पीएनएल में डाल देंगे. तो 100 इंटू 106, 100 इंटू 106 को हम पीएनएल में डाल देंगे. 10,600 ये पीएनएल में चार्ज हो जाएगा बिकॉज एबनॉर्मल लॉस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. क्लियर? कैसा? 5 मिनट. कौन से क्लास में हो? आ रहा हूँ. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? टू गुड. अब बचे 19,500 यूनिट्स. 19,500 यूनिट्स में से 18,000 कंज्यूम हो गए थे. तो 18,000 अगर कंज्यूम हो गए थे तो 1,500 हमारा क्लोजिंग था. सो दिस इज कंज्यूम्ड, दिस इज क्लोजिंग इनटू 106 इनटू 106. सो गाइस 1,500 इनटू 106 आई एम गेटिंग 1,59,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा. और 18,000 into 106, 19,08,000 हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माना जाएगा. टेल मी जकास. समझा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की कहानी? अमेजिंग. ग्रेट गाइस. टू गुड. सो गाइस थैंक यू ऑल. Love you all. Jakaas, I hope you guys are enjoying this lessons and sessions. Meet you on the other side. This is my session number 3. This session was on inventory valuation, AS2. अब हम थोड़ा jump मारेंगे and I'll directly go on to the next class. My lecture number 4 will be for PPE, property, plant and equipment. Classic है. Too good. Jakaas. Final revision. Inventories are assets held for sale in ordinary course of business in process of production for sale in form of material and supplies to be consumed in production process or for rendering of services, including maintenance supplies and consumables, excluding machinery spares, standby equipment, service equipments, which meets the definition of PP. Next one. Inventory should be valued at cost or NRV, whichever is less, but raw material should always be valued at cost. Only if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then raw material should be valued at replacement cost. Work in progress and finished goods should be valued at cost or NRV, whichever is less. Next one. Cost includes cost of purchase, cost of conversion, other cost, excludes abnormal wastages, storage cost, admin cost, selling cost. Cost of conversion में fixed overhead should be absorbed at actual cost per unit or budgeted cost per unit, whichever is less. And
cost में again scrap byproduct joint product scrap valued at scrap byproduct always at NRV profit ignored joint product split between the two in some rational and reasonable basis or more than two, but sales value should be considered as a base. Next one, NRV is the cost, estimated cost of sale minus estimated cost of completion minus estimated cost to sale. Work in progress में estimated cost of completion आएगा, finished goods में नहीं आएगा. Inventory valuation of techniques, non-interchangeable, interchangeable, not interchangeable, specific identification method, khatam, interchangeable, historic, non-historic, historic, FIFO, weighted average, non-historic, standard costing, and retail inventory method. Classic. Love you guys. See you on the other side. Thank you. Bye-bye.